سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ایک اچھی خبر۔ پاک روس تجارت پروان چڑھنے لگی ہے۔ خام تیل کے بعد روس نے گیس بھی مہیا کر دی۔ روس سے پاکستان کو 1 لاکھ میٹرک ٹن LPG گیس کی بڑی کھیپ موصول ہو گئی۔ تفصیلات جانیں گے، اپنے نمائندے اصغر عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصغر، اس خبر کے بارے میں مزید بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ روس اور پاکستان قریب آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ رشین آئل بھی پاکستان آ چکا ہے، لیکن اس بار LPG جو ہے 1 لاکھ ٹن کی جو کھیپ ہے وہ پاکستان پہنچی ہے، جس پہ جو ہے بڑے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑے درینہ ضروریات ہیں پاکستان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دونوں ممالک جو ہے اس ڈیل کو مزید توسیع دینے کے لیے اور اس کو مستقل بنیاد پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس ڈیل کے بعد، اس کھیپ کے آنے کے بعد مزید یہ سلسلہ آگے چلے گا اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور LPG کی جو شارٹیج ہے، گیس کی جو شارٹیج ہے، وہ کافی حد تک کم ہوگی۔ جی، یقینی طور پر پاکستانی عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہی ہے۔ اصغر عظیم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے قانون نمٹے گا۔ چیئرمین PTI الیکشن لڑیں گے یا نہیں، یہ قانون دیکھے گا۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینا یا نہ لینا قانونی مسئلہ ہے، سیاسی نہیں۔ میرے کسی سیاسی جماعت یا رہنما سے مذاکرات نہیں ہوئے، میرے لندن کے دورے کو کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے، نہ یہاں آنے کا مقصد سیاسی ملاقاتیں کرنی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت وہ PMLN کی لیڈرشپ ہو، PTI کی ہو، PPP کی ہو، جمعیت کی ہو، ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، بلکہ قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ عدالتیں ہیں۔ قانون کسی بھی شخص، وہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس کو اجازت دے گا تو وہ لے گا اس میں حصہ، اور اگر نہیں دے گا تو نہیں لے گا حصہ۔ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھا کہ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کو کیسے اس اتھارٹی کو انڈو یا کمپرومائز کیا جاتا۔ وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک سب جوڈس میٹر ہو، تو اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جہاز سے عدالت میں پیشی تک رعایت ملنی چاہیے۔ پروگرام G4 غریدہ میں بات کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر غلام دستگیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کو راہداری کی ضمانت دی جائے کہ وہ پاکستان میں لینڈ ہوں، اور اگلے دن تک جب تک وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش نہ کر دیں، اتنا ان کو سپیس چاہیے جہاز سے لے کر عدالت میں پیش ہونے تک کا، کیونکہ انہوں نے ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، انہوں نے اس کی آ کے پیروی کرنی ہے۔ جب وہ آئیں گے اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے، اس کے بعد پھر عدالت کی سماعت آئیں گے، اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاں تک تو سپورٹ ان کے آنے کی تعلق ہے، میں بالکل ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے عدالت سے کہ میں واپس آؤں گا، اور اس وعدے کو بہت دیر ہو گئی، وہ پورا نہیں ہوا۔ اب جب وہ واپس آ رہے ہیں، جس دن وہ پاکستان پہ لینڈ کریں گے، تو حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کریں، اریسٹ کر کے ان کو واپس جیل میں لے کے جائیں۔ اس کے بعد وہ اپیل، جہاں تک ان کا تعلق ہے اپیل کا، وہ ان کی اگر پینڈنگ ہے اپیل ہائی کورٹ میں، تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت ہوگی، اور اگر وہاں عدالت کو کچھ نظر آیا کہ واقعی اس کیس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور وہ ان کو ایکوٹ کرنا چاہیں، تو پھر وہ فائنل فیصلہ کرے گی عدالت، اس کے بعد وہ باہر آ سکیں گے۔ خبر کو دیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈول کا اجرا جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے 90 روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم تیار کر لی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقوں میں انتخابات ہوں گے، جن میں قومی اسمبلی کے 266 حلقے اور صوبائی اسمبلیوں کے
593 हलके शामिल हैं। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। और अब खबर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अटक जेल से चेयरमैन PTI को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। उस मौके पर अडियाला जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा काशिफ से। राजा काशिफ, कैसी सूरत हाल रही इस दौरान? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से दिए गए फैसले पर मनो अमल दरामद करते हुए जो है फौरी तौर पर इस्लामाबाद इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस जो है चेयरमैन PTI को अटक जेल से लेकर इस टाइम अडियाला जेल जो है वो पहुंच चुकी है। सख्त हिफाजती सिक्योरिटी में जो है वो चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जब दिन में जो है अटक जेल से चेयरमैन PTI को लेने के लिए इस्लामाबाद पुलिस गई तो तकरीबन 30 गाड़ियों का काफिला जो उनके हमरा था, जिसमें एक एम्बुलेंस और 2 बख्तरबंद गाड़ियां थी। इसके अलावा चेयरमैन PTI को बख्तरबंद गाड़ी में जो है अटक जेल से जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। एक डॉक्टर्स की टीम भी एम्बुलेंस में उनके हमरा है जो उनकी सेहत की जांच करेगी। इसके अलावा जो है चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया था। सख्त सिक्योरिटी हसार में जो है चेयरमैन PTI को अब से कुछ देर कबल जो है अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी निगरां वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुतल्लिका वज़ारतों ने मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसी सतह के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में सरमायाकारी के राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए काबिल अमल इक़दाम वज़ी किए। इंजेक्शन से बीनाई जाने के वाक़यात। पुलिस ने मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मॉडल टाउन के निजी अस्पताल में एविस्टन की वाइल से इंजेक्शन तैयार करता था। इस वाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जवाद शाह से। जवाद शाह, ज़रा बताइएगा पुलिस मजीद क्या बताती है इस अहम और बड़ी गिरफ्तारी से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ये पुलिस का कहना है कि मरकजी मुलजिम जो था इंजेक्शन से बनाई जाने के वाकयात में जो मामला पेश आ रहा था उसमें जो मरकजी मुलजिम बिलाल को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल टाउन के इलाके में वाक़या के निजी अस्पताल में मुलजिम एवेस्टीन की वाइल से इंजेक्शन तैयार करता था। लाहौर पुलिस ने आरिफ वाला पुलिस की मामले से और उनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके मुलजिम की गिरफ्तारी जो है यकीनी बनाई है। पुलिस पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन विंग ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। इंजेक्शन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिला में सप्लाई किए जाते थे और एक वाइल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए से जब मुनाफा कमाया जा रहा था। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ऐसे मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया जवाद आपका। FIA ने खुफिया इत्तला पर हैदराबाद में छापा मारा है। छापा अजीज़ अहमद नामी शख्स के फ्लैट पर मारा गया। छापा मार कार्रवाई में भारी मिकदार में डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। अजीज़ अहमद इंपोर्टेड कारों का कारोबार करता था। रावलपिंडी पुलिस ने 31 अगस्त को अगवा किए गए 3 साला बच्चे को बाजियाब करवा लिया। रावलपिंडी पुलिस के SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर थाना धमियाल पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज करवाई। मुल्जिमान ने बच्चे को अगवा करके 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान की खोज लगा ली। लाड़काना सर्किल में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। 18 रोज़ पहले शुरू होने वाले ऑपरेशन में 13 करोड़ रुपए से जायद की वसूली हो चुकी है। लाड़काना शहर और उसकी तहसीलों में बिजली चोरों के गेट घेरा तंग होने लगा है। कंबर शहदाद कोट और रतो डेरों में कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर 130 ट्रांसफार्मर काट दिए गए, जबकि 55 उतार लिए गए। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ लाड़काना में अब तक 45 मुकदमा जबकि कंबर शहदाद कोट में 69 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध के तालीमी इदारों के दौरे मकबूल बाखर DG कॉलेज से शदीद नाराज़ दिखाई दिए। निजी फलाही इदारे के हाउस ऑफ एजुकेशन का इफ्तिताह भी किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। JDC की जानिब से अंचोली में बनाए गए मॉडल स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने किया। स्कूल के बच्चों ने निगरान वज़ीर आला सिंध को गुलदस्ता भी पेश किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, यहाँ खड़े होकर लग रहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के स्कूल में खड़े हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ मुफ्त तालीम दी जा रही है। इस स्कूल को देख के बहुत मुसर्रत हुई और ये एक मिसाल है कि कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो, कोशिश व काविश हो तो वो यकीनन रंग लाती है। इदारे के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास ने बताया कि अगर हुकूमत मदद करे तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे स्कूल कायम कर सकते हैं। अगर हमें इस जैसे स्कूल और गोद मिलते गए और जिस तरह वज़ीर आला सिंध ने आज जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा है कि हम एजुकेशन में भरपूर सपोर्ट करेंगे, अगर उनकी तरफ से सपोर्ट की गई हम इस जैसे स्कूल पाकिस्तान भर में खोल देंगे। हाउस ऑफ JDC में तुलबा के लिए AC, सेफ्टी कैमरे, इंटरेक्टिव बोर्ड समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। हाउस ऑफ एजुकेशन के सरबराह जफर अब्बास का दावा है कि स्कूल के असातिज़ा जदीद तालीम देने के माहिर हैं।
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़रिए एहतमाम नूरी अस्पताल इस्लामाबाद को बैन अक़वामी तवानाई एजेंसी के एंकर सेंटर के तौर पर नामज़द कर दिया गया है ताकि IAEA के मेंबर ममालिक नूरी अस्पताल की पेशेवराना महारत और तरबियती सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। PAEC से जारी एलामिया के मुताबिक ऐसे इक़दाम से कैंसर के इलाज और तहकीक में ख़ित्ते के ममालिक की सलाहियतें बढ़ाई जा सकेंगी। IAEA के 67वें इजलास के मौके पर वियना में मुनक़िदा एक तकरीब में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें इस्लामी कानून, विरासत, मुस्लिम आइली कवानीन, तालीमी निज़ाम और सूद के ख़िलाफ़ वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले समेत निजी सूदी कर्जा जात और सोशल मीडिया के कवानीन पर बहस की गई। काउंसिल के रुकन मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था काउंसिल ने खुला, ज़कात और विरासत के जदीद मसाइल और मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए सूदी कर्जा जात के ख़िलाफ़ कानून साजी की भी सिफारिशात की हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 34 में से 20 यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया होने के करीब पहुँच गई हैं। माशी बदहाली की शिकार यूनिवर्सिटीज़ में गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान सूबे में तीसरे नंबर पर है। 20 में से 16 यूनिवर्सिटीज़ गुज़िश्ता 15 साल के दौरान 3 हुकूमतों ने सियासी बुनियादों पर कायम की। अगले माली साल के दौरान मज़ीद 2 जामियात का इजाफा होगा। जहाज़ उड़ाते उड़ाते पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन डूबने लगी है। माली साल 2023 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए। शिशमाही रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 41.31 अरब डॉलर थे। ऑपरेशनल कॉस्ट में फ्यूल और ऑयल की कीमत बढ़ने से अखराजात में 41% का इजाफा हुआ है। एविस्टन इंजेक्शन शुगर के मरीजों में अंधापन फैलाने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 77 से ज़ायद अफराद की आंखें मुतासर, जबकि 22 मरीजों की बीनाई छिन गई। बुरेवाला में 6 ख़वातीन और 4 मर्दों की ज़िंदगी अंधेरी हो गई। कराची में चलने वाली गर्द आलूद और खुश्क हवाओं के सबब सांस के अमराज में 60% इजाफा हो गया है। यौमिया जिना अस्पताल कराची में 500 मरीज OPD में आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, वजूहात क्या बताई गई हैं अस्पताल ज़राए की जानिब से? जी देखिए, माहिर अमराज सीना डॉक्टर सैफुल्लाह चाचड़ के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर जिना अस्पताल में सांस के अमराज में के 500 मरीज जो है वो OPD में आ रहे हैं। कमजोर फेफड़ों के सबब दमे के मरीजों को परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। कराची में सब गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। खुश्क मौसम की वजह से सिगरेट नोशी करने वाले अफराद भी सांस के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। सैकड़ों मरीज सांस लेने में जो है वो दुश्वारी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। माजी में सांस के जो है वो 15 मरीज दाखिल हुए थे, लेकिन अब योमिया जो है अस्पताल में 25 सांस के मरीज जो है वो दाखिल हो रहे हैं। शहरी सफर और तामीराती काम के दौरान जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। बहुत शुक्रिया जमजम आपका। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल पाकिस्तान में 2 और अफ़गानिस्तान में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोनों केसेस बन्नू KP से रिपोर्ट हुए हैं। 2 साल की अनथक मेहनत के बाद अब तक पोलियो का कोई केस नहीं है। हर माह सेवरेज के पानी से सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाता है। कराची की माड़ी की 5 UCs इस वक्त हाई रिस्क हैं, जहां बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पंजाब, KP और अफगानिस्तान आते जाते रहते हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि पोलियो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक बाकायदा कानून मौजूद है। जिन इलाकों में पोलियो वैक्सीनेशन में रुकावट है वहाँ कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाए। भरपूर मीडिया कैंपेन भी चलाई जाए। सिंध प्रीमियर लीग के सितारों से सजी हुई मजबूत टीम हैदराबाद बहादुर्स ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल GTV न्यूज़ को अपना मीडिया पार्टनर मुंतखब कर लिया है। हैदराबाद बहादुर से साबिक जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज हर्शल गिब्स बतौर मेंटोर, साबिक पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक हेड कोच और साबिक पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक बतौर कप्तान वाबस्ता हैं। हैदराबाद बहादुर के ओनर और CEO जहांजेब आलम का कहना था कि CPL में हैदराबाद बहादुर के साथ GTV न्यूज़ का वाबस्ता होना इस बात की दलील है कि GTV और G स्पोर्ट्स हमेशा खेल और खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए हम वक्त दस्तियाब रहता है। माजी में भी GTV के प्लेटफॉर्म से हमेशा खेल और खिलाड़ी दोनों को भरपूर पजीराई मिली है। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन को पाकिस्तान में CHI हेयर लाने और CHIL हेयर कलर मास्टर फैक्ट्री के साथ हेयर इंडस्ट्री को दरकार तब्दीली का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। CHI अमेरिका में बालों की देखभाल करने वाले CHIL ब्रांड के तौर पर मशहूर है।
डायरेक्टर CH ऑयल वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन साद मंडाविया ने बताया कि सख्त एमोनिया को अलविदा करें और मुतहरिक एमोनिया से पाक बालों को रंग कर हेलो कहें, जो आपके बालों की सेहत और कुदरती खूबसूरती का एहतराम करता है। हमारे शैम्पू बेहतरीन अज्जा से भरपूर हैं। हम अपने सार्फिन को एमोनिया से पाक हेयर कलर प्रोडक्ट्स के एक रेंज फराहम करने के बालों की देखभाल की नई तारीफ कर रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का बैरून ममालिक से परवाज़ों की रवानगी और आमद से मुतल्लिक अहम इक़दामात। हवाई जहाज़ का डिसइंफेक्शन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के इजलास में फैसला किया गया है कि हवाई जहाज़ का डिसइंफेक्शन सर्टिफिकेट मुतल्लिका अहलकार और पायलट से दस्तखत शुदा हो। हवाई जहाज़ की रवानगी से कबल महकमा सेहत को लाजमी जमा करवाया जाए। बेदखल किए जाने वाले मुसाफिरों का डेटा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के साथ लाजमी तौर पर शेयर करने की हिदायत जारी की गई हैं।